Assalamu alaikum. This is your course instructor, Mr. Paul, from Division of Science and Technology, University of Education, Township Campus, Lahore. So, dear students, I hope all of you are doing well at home and taking good care of yourself and your family members too. As you all know that we are learning the course that is IT Project Management, and all of you are from semester 6, and getting online classes from several subjects also. I'm taking your feedbacks on regular basis from the comment section also, and I'm aware that some of you people are taking concern that showing great concern on the subjects and the subject slides also, and I hope shortly we are going to have online lectures from me too, online sessions, or I'll be available on GCR and you can ask any kind of question if you want to. Today's lecture is about project cost management. As you've learned about project integration management, project time management, and project scope management. All of these come under the roof of IT project management or simple project management. Similarly, project cost management is also the subcategory of project management. This is not the category of finance or accountants. This is definitely the know how or the knowledge about the project cost management, and a successful project manager should have to have the knowledge of project cost, how you are going to allocate this cost to the project, and how it's going to affect the whole success or failure of the project. As I've already told you in my previous lectures, that time, cost, money, scope, all of these are important parameters in the successful ending of a project. So as you can see, the importance of project cost management is what it is. IT projects have a poor track record for meeting budget goals. Why is that so? It is because being a IT project manager, most of the people literally do not consider the basic parameter of cost, because we being IT experts, we used to think that completing the user's requirement is the main task or is the main goal to achieve. Yes, it is. It definitely is. But having the thing in mind that a client or a stakeholder definitely have some budget in his head to expand on to spend on any kind of project. So if we are not going to uh, making the things clear that cost matters, then it will be a drastic failure of a project in terms of budget. The Chow studies found the average cost overrun ranged from 180% in 1994 to 43% in 2002. The Chow studies has already been quoted in your previous lecture of project time management. You can see that from there too, it was cited, and the research citation was given in previous lecture too. Other studies found overruns to be 33 to 34%. Now, what that overrun is, the additional percentage or dollar amount by which actual cost exceeds estimates. The original amount is given somewhere in the original initial document. For example, the defined project budget is $6,000, and now you are going to have the said amount for the given project, but after completing the whole project, you've seen that now your
given amount is not only $6,000, but it's $6,500 or it's $7,000. So if that amount increased from 6,000 to 7,000, then that $1,000 overrun, that $1,000 extra is basically the overrun of your project. So this is the study that has already shown that you used to have an average cost overrun in your IT projects. Now, what is cost and project cost management? As you all know, the basic definition of cost is a resource sacrificed or foregone to achieve a specific objective or something given up in exchange. You already knew that, you knew what cost is, and you knew this from your childhood. आप जब से बच्चे थे आप तब से जानते हैं कि कॉस्ट क्या चीज़। आप कुछ खरीदने जाते थे और आप उसके लिए पैसे पे किया करते थे, आप मनी ट्रेल किया करते थे। इससे पहले ये हुआ करता था कि बार्टर सिस्टम चला करता था और लोग चीज़ों के बदले चीज़ें खरीदा करते थे। अब भी कॉस्ट बेसिकली ज़रूरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी ही कंसिडर किया जाए। दिस इज एनी काइंड ऑफ रिसोर्स दैट यू कैन सेक्रीफाइस ड्यू टू एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू अचीव शॉर्टली। कोई भी चीज़ के लिए जब आप कुछ पे कर रहे हैं, कोई रिसोर्स दे रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, बजट लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉस्ट। Costs are usually measured in monetary units like dollars. Usually जो रिसोर्स हम सेक्रीफाइस करते हैं या जो रिसोर्स हम देते हैं किसी भी चीज़ को अर्न करने के लिए, उस कॉस्ट का मतलब ही ज़्यादातर पैसा कंसिडर किया जाता है, मनी कंसिडर किया जाता है, रुपीज़ या डॉलर्स कंसिडर किया जाता है। तो कॉस्ट अगर आप डायरेक्ट कहेंगे कि जी पैसा कॉस्ट है तो यस इट्स ट्रू, लेकिन अगर आप कहेंगे कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जो हम किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो दैट रिसोर्स इज बेसिकली योर कॉस्ट। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट? इट इंक्लूड्स द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद एन अप्रूव्ड बजट। आपका कोई एक ऐसा पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाए कि आपके गिवन बजट के अंदर रहते रहते आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट किस तरह से किया जा सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर दिया है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं वो है $6,000 फॉर एग्जाम्पल। तो वो $6,000 को आपने कब कहाँ यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे लाइफ साइकिल को चलाने के लिए आप जो स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करेंगे या जिस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज project cost management. Now, project managers must make sure their projects are well defined, have accurate time and cost estimates, and have a realistic budget that they were involved in approving. अब ये भी बात आप सब लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ये बात ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल एंडिंग के लिए कितने बजट एस्टिमेट की ज़रूरत है या कितना बजट एस्टिमेट जो है वो रियलिस्टिक लग सकता है, एटलीस्ट फेक ना लगे। फेक से मेरी मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा ना हो जो कि आपको लगे कि ये हमारी रूटीन से बहुत ज़्यादा है, और इतना कम ना हो कि हम बाद में खुद खसारे में जाएं, जो कि कोई भी कंपनी कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकती है। तो गिवन रेंज के अंदर अंदर रहते हुए आपका प्रॉफिट मार्जिन जरूर रखते हुए आपने जो एक कॉस्ट डिसाइड करनी होती है, दैट इज इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। रीजंस फॉर कॉस्ट ओवररन्स। हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि ओवररन क्या है, एस्टिमेटेड बजट एंड एक्चुअल बजट, इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम बोलते हैं ओवररन। अब वो कह रहा है कि ये ओवररन है क्या, इसकी वजह क्या है। नॉट एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट्स फ्रॉम द आउटसेट। ये ऑलरेडी आपको लास्ट स्लाइड में ये बात क्लियर की है कि रियलिस्टिक आपने बजट्स के एस्टिमेट्स नहीं रखे। रियलिस्टिक नहीं रखे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि या तो बहुत कम है
मतलब कंपनी जो है वो लॉस में जाएगी, या इतने ज्यादा है कि आपका स्टेक होल्डर जो है वो उसके ऊपर एक सेकंड थॉट दिए बगैर ना रह सके, बिकॉज दिस इज द मार्केट. IT project या IT project industry is the whole market, and everyone knew that which kind of project take how many, how much cost. So you should have to be very much realistic. You shouldn't have to be idealistic. So many of the original cost estimates for IT projects are low to begin with and based on very unclear project requirements. अब कॉस्ट जो है वो आपने बहुत स्टार्टिंग में लो दे दी. इसको आप इस तरह से भी एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं. जब आप लोग फ्रीलांस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिड करते हैं. बिड करते हुए वो आप बताते हैं कि इतने पैसों के अंदर, इतने टाइम फ्रेम के अंदर वो गिवन काम को कंप्लीट कर सकते हैं. अब अगर आपने उस टाइम पे ये काम इसलिए किया कि आपने प्रोजेक्ट लेना है बस, तो फिर बाद में आपको उसके लिए मसले होंगे एंड यू शुड हैव टू फेस दोज प्रॉब्लम्स. लेकिन अगर आपने उस टाइम पे बिड करते हुए इस बात का ख्याल रखा कि प्रोजेक्ट इस नौयत का है, इस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ये हैं, और मुझे इतने टाइम फ्रेम पे नहीं, 6 दिनों में नहीं बल्कि 10 दिनों में, या 6 हफ्तों में नहीं बल्कि 10 हफ्तों में इसको कंप्लीट करना चाहिए, मुझे इसके लिए इतने नहीं बल्कि इतने पैसे होने चाहिए, तो होगा तो ये कि आप उस चीज़ से, क्योंकि ऑलरेडी रियलिस्टिक आपने अपने एक जो है आइडियाज़ दिए हुए होंगे, तो अगर आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाता है आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल भी रहती है और आप काम भी उतनी जो टाइम फ्रेम होता है और उतना जो कॉस्ट होती है उसके अंदर कर जाते हैं. तो दिस इज समथिंग यू शुड हैव टू बी रियलिस्टिक. चाहे आप फ्रीलांस कर रहे हैं प्रोजेक्ट करते हुए, चाहे आप किसी इंडस्ट्री को चला रहे हैं या आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं. Many IT professionals think preparing cost estimates is a job for accountants when in fact it is a very demanding and important skill that project managers need to acquire. Now this thing, as I've already told you, that most of the people think that this is the job of finance department. Rather, it's the job of project managers. And project managers can be in the category of IT. Many IT projects involve new technology or business processes which involves untested products and inherent risk. अब एक और आपके पास रीज़न है ओवररन का, और वो रीज़न क्या है कि बहुत सारे आपके आईटी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर नई टेक्नोलॉजी या नए बिजनेस प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. और जब कुछ नई टेक्नोलॉजी या नए बिजनेस प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं तो रिस्क की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बढ़ जाती है. आपके प्रोजेक्ट के अंदर इस अनटेस्टेड प्रोडक्ट्स को या इन न्यू प्रोडक्ट्स को इनहेरेंट करने की रिस्क कैपेबिलिटी क्या है, ये चीज़ भी डिटर्मिन करती है कि आपका कॉस्ट ओवररन क्या होगा. रिस्क ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट टाइमली ख़त्म नहीं होगा, महंगा होता जाएगा. और अगर आप एक फेल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर मज़ीद पैसे यही सोच के लगाते जाएंगे कि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत पैसा लग चुका है, तो दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ फेलियर. Getting my point? So you should have to be very much clear while involving new technology, or you are going to use any kind of new business process. Now, what is project cost management process? There are three project cost management processes, and those are cost estimation, cost budgeting, and cost control. First thing first, that is cost estimating. Developing an approximation or estimate of the cost of the resources needed to complete a project. आपने एक एस्टिमेशन बनानी है, अप्रॉक्सीमेशन बनानी है. और किसके लिए बनानी है? अपने उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए जो कि आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट होने में चाहिए होंगे. अगर आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से डेवलप कर लेते हैं तो इसका मतलब है इन लॉन्ग रन आपने अपने कॉस्ट को बहुत बेहतर तरीके से डील कर लिया, आपका कॉस्ट जो है वो वेल मैनेज्ड है. लेकिन अगर आपने कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो पुअर की है तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स इन नियर फ्यूचर. Cost budgeting, allocating the overall cost estimate to individual work items to establish a baseline for measuring performance. Now, as you can see, cost budgeting is the next process of project cost management. The first one is cost estimate, that you have to estimate or you have to approximate the cost of whole project. But now cost budgeting is you have to divide your project into different chunks and pieces, and then you have to allocate the resources or the budgets accordingly.
The last one is cost control. As you all know that everything comes with a control and monitor process. So cost control is controlling changes to the project budget. कभी ज़रूरत पड़ जाती है बजट में किसी भी तरह की तब्दीली करने की, कम करने की, ज़्यादा करने की, तो ये भी आपके पास एक प्रोसेस, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में ये बात भी शामिल होती है. So what cost control is? This is the overall control of the change in any kind of change in project budget. Or if there isn't any kind of change, then you should have to keep the keen observation on your project cost, and you should have to keep it on all the time whenever you are going to start or to finish a project. You should have to have keen observation on the cost, and this keen observation or this monitoring is basically comes under the cost control. प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट समरी जो अभी आपको बताया है कि कौन कौन से पार्ट्स इसके, कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन है, बजटिंग है, कंट्रोलिंग है. तो जो सबसे पहले है कॉस्ट एस्टिमेशन. कॉस्ट एस्टिमेशन के आउटपुट में क्या आएगा? एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेशन, सपोर्टिंग डिटेल्स आ जाएंगी, रिक्वेस्टेड चेंजेस आ जाएंगे, अपडेट्स तो कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा. मतलब क्योंकि कॉस्ट एस्टिमेशन होता बहुत शुरुआत में है, तो इसलिए जितनी भी तरह की अपडेट्स आनी है वो प्लान के अंदर आनी है. कोई भी तरह का चेंज आया है वो भी आपके इसके अंदर आएगा, जो भी आपने चेंज किया है, और अगर आपने चेंज किया है उसकी वजह से आपके कॉस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ा है. आपने मोस्ट ऑफ टाइम सुना होगा कि टूल और टेक्नोलॉजी बदल दिया तो कॉस्ट चेंज हो जाती है. तो अगर किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट में तब्दीली आएगी तो उस रिक्वायरमेंट में तब्दीली जो है वो आपके कॉस्ट एस्टिमेट्स को भी कम ज़्यादा कर सकती है. अगला जो आपके पास प्रोसेस था वो था कॉस्ट बजटिंग का. कॉस्ट बजटिंग जैसे कि आपको बताया कि कॉस्ट एस्टिमेट के बाद जब आपने हर एक बिट एंड चंक को कोर्सेज के सॉरी कॉस्ट के इक्वल पार्ट्स एलोकेट करने हैं, या आपने कितनी कॉस्ट किस पार्ट को एलोकेट करनी है, इस चीज़ को हम कॉस्ट बजटिंग कहते हैं. तो इसके आउटपुट्स के अंदर क्या आएगा? मतलब कि जब हम कॉस्ट बजटिंग कर लेंगे तो व्हाट कम्स अंडर द आउटपुट इज कॉस्ट बेसलाइन, प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्वेस्टेड चेंजेस, अपडेट्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान.